today we are going to talk about covariance and correlation. Now, these are concepts that are very important for your future classes, not just in this semester, but maybe the following semester, where you will be reading econometrics. So, you need to understand basically what is covariance and what is correlation. Now, since we are talking about more than one random variable, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं about two random variables, there is obviously going to be either going to be some relationship between them, or there it is also possible that there is no relation between them. So covariance and correlation basically tells you about the relationship between these two random variables. So there are broadly two possibilities, that x and y are independent, which means that the two are not related to each other. इसका मतलब होता है कि x is increasing, y could increase or y could decrease. You can't for sure say that, you know, when x increases, y will also increase, or higher values of x are associated with higher values of y. So it is possible that these two variables are not related with each other at all. At the outset, if you say that x is, say, taste and preferences of a consumer, and y is, say, number of plants in that consumer's house, then we can believe कि इन दोनों का कोई आपस में relationship नहीं है. You know, if y increases, if the person has more and more plants in the house, then the taste and preference of a consumer has got nothing to do with that. So you know, you can say that these two variables are completely not related with each other. In that particular case, यहाँ पे covariance correlation का कोई मतलब नहीं है, because the two variables are not related to each other. ठीक है? In that case, we call these two variables as independent variables. The other possibility is when the two variables are not independent, they are dependent on each other. Now, when they are dependent on each other, again, taking two variables, again, x, let's say, stays same, which is taste and preference of a consumer, and y now is income. Now, we know कि definitely these two are related with each other. ठीक है? तो if income increases, then that could affect the taste and preference of a consumer, because as income increases, your choice as a consumer will also change. You might, if you have more income, अगर आपके पास है income जो आपकी subsistence को भी cover कर रहा है, and then you are left with some surplus income, तो definitely you might want to, you know, purchase more expensive things. You might want to spend on luxury items. So obviously the two are related with each other. If y increases, x will also increase. So they are related with each other. In that case, we call the two variables as not independent or dependent. Now, covariance and correlation are two concepts which are going to tell you how strong is the relationship between x and y. तो अगर कोई दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, एंड यू नो दैट द टू वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, यू वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि इन दोनों का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है. अ नोट ऑफ कॉशन इज दैट कोवेरियंस एंड कोरिलेशन ओनली टॉक्स अबाउट लीनियर रिलेशनशिप. नाउ जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई आपस में लीनियरली रिलेटेड हो. ठीक है, मैं बोल सकती हूँ दैट x इज इक्वल टू 2 times y. अगर मैं x को क्वांटिफाई कर दूं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर को किसी तरीके से क्वांटिफाई कर दूं, तो मैं बोल रही हूँ दैट x इज इक्वल टू 2 times y, मीनिंग कि अगर इनकम इंक्रीज होगा तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस उसका डबल इंक्रीज होगा. ठीक है, देयर कुड बी हाइपोथेटिकली दिस रिलेशनशिप विच इज अ लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, अगर कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप है इन दोनों वेरिएबल में, देन कोवेरियंस और कोरिलेशन आपको जो भी नंबर देंगे, दैट विल टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है दैट एक्स मे बी इक्वल टू वाई स्क्वायर. सो आई एम सेइंग दैट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर स्क्वायर ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, विच इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप, इट इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप. So in that particular scenario, the value of covariance and correlation may be equal to 0. जिसका मतलब ये है कि x और y के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं प्रेजेंट है. जिसका मतलब ये नहीं है कि x और y इंडिपेंडेंट है या x और y आपस में रिलेटेड ही नहीं है. अगर x और y इस तरीके से रिलेटेड है तो हम इनको इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज द टू आर रिलेटेड टू ईच अदर बट इन अ नॉन लीनियर फैशन. सो इवन इफ देयर इज some kind of dependence between the two variables, if that dependence is non-linear, then covariance और correlation आपको
कोई स्ट्रेंथ नहीं बताएंगे, बिकॉज कोवेरियंस और कोरिलेशन आपको सिर्फ लिनियर strength बताते हैं. So before understanding how do you calculate covariance and correlation, it is important to understand this point. Now let's look at how do you calculate covariance. So since we are talking about two variables x and y, so the formula for covariance of x and y is expected value of x minus mu x into y minus mu y. मतलब x minus mu x tells you the deviations of the random variable from its mean value. जो भी x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, x रैंडम वेरिएबल का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कितना डिविएटेड है फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, एंड द सेम इज गिवन बाय y minus mu y. इस प्रोडक्ट का when you take the product of x minus mu x with y minus mu y, when you take the product and then you take the expected value of it, that gives you the covariance between x and y. एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था. सो यू नाउ हैव कंसिडर दिस एज एच एक्स वाई एंड यू जस्ट सिंपली टेक द एक्सपेक्टेड वैल्यू एज बिफोर, जैसे पहले किया था एग्जैक्टली वैसे ही, बस अब आपको इस पूरे प्रोडक्ट को एच एक्स वाई या फंक्शन ऑफ एक्स वाई कंसिडर करना है. सो यू विल हैव, अगर डिस्क्रीट है दोनों वेरिएबल्स तो कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई. एंड ऑब्वियसली अगर आपको covariance निकालना है then you need to know the PDF or PMF depending on whether your variable is discrete or continuous of the two random variables. आपको joint PDF PMF पता होना चाहिए. और अगर ये continuous है तो आप इस product का integral लोगे. What are the possible signs of covariance? So covariance, let me depict this through three graphs. I am taking x on the x-axis and y on the y-axis, values of x and y basically on the x and the y-axis respectively. Now obviously यहाँ पे कुछ mu value भी होगा x और y का. Let's take a point here which is mu x mu y. Now हम अभी देखें कि covariance xy क्या है. It is an expected value of the product of deviations of the two variables from its mean value. ठीक है. So if I divide the entire range into 4 parts, these are the x values which are greater than mu x, these are the x values which are less than mu x. Similarly, these are the y values which are greater than mu y, and these are the y values which are less than mu y. So if I fall in suppose this quadrant, this area, then यहाँ पे x minus mu x will be what? Would it be positive or negative? X values are greater than mu x, so x minus mu x will be positive and y minus mu y will be negative. So I can expect the product of the deviations to be negative. ठीक है. तो यहाँ पे because positive will get multiplied with negative signs, so the overall effect will be negative. ठीक है. Here you will have positive because both x minus mu x and y minus mu y will be positive, so the product will be positive. Similarly मैं यहाँ पे इन areas के भी sign को depict कर सकती हूँ. Now ये sign basically आपको क्या बता रहे हैं कि अगर if you look at any of these quadrants individually, suppose I look at this one, it is telling me that positive deviations of x are simultaneously lying with positive deviations of y. ठीक है. जब मैं यहाँ पे points plot करूंगी, so when I have x and y, ठीक है, तो मैं यहाँ पे x और y के जितने भी मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे मैं उनको यहाँ पे प्लॉट करूंगी. सो इफ एनी पॉइंट लाइज इन दिस क्वाड्रेंट, सपोज एक x और y का टिपिकल पॉइंट है यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे लाई करता है तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि इस पॉइंट पे x का डिविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑल्सो पॉजिटिव और y का डिविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑल्सो पॉजिटिव. दैट इज व्हाई इट इज गिविंग यू पॉजिटिव साइन. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, सपोज एक x और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लाई करता है. ठीक है. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे x का जो डिविएशन है फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू नेगेटिव है और y का भी डिविएशन जो है फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू नेगेटिव है. मतलब बेसिकली आप देख रहे हो कि इन दोनों क्वाड्रेंट्स में, इसमें और इसमें, जो x और y का मूवमेंट है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन वैल्यू वो सेम डायरेक्शन में है. यहाँ पे दोनों अपने मीन से ज्यादा हैं और यहाँ पे दोनों अपने मीन से कम है.
तो ये दोनों जो क्वाड्रेंट्स हैं, अगर आपके majority पॉइंट्स इन दोनों क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सपोज आई प्लॉट एक्स एंड वाई, ठीक है, और मेरे को कुछ इस टाइप का पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है. So I will see that most of my points are lying in these two quadrants. If that is the case, then we call the relationship between x and y as positive relationship. And x and y will be called as positively related with each other when higher values of x are associated with higher values of y and smaller values of x are associated with smaller values of y. Basically, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर ईदर लाइंग इन दिस क्वाड्रेंट या इस क्वाड्रेंट में. और दोनों क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि इस क्वाड्रेंट में छोटे एक्स वैल्यूज हैं एंड साइमल्टेनियसली छोटे वाई वैल्यूज हैं, और इस क्वाड्रेंट में बड़ी एक्स वैल्यूज हैं और साइमल्टेनियसली बड़ी वाई वैल्यूज हैं. सो अगर आपका कुछ एक्स और वाई का, जब आप पॉइंट्स को प्लॉट करते हो ग्राफ पे, कुछ इस तरीके का फिगर आपको दिखता है, देन यू विल से कि एक्स और वाई आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद ईच अदर. ऑपोजिट ऑफ दिस विल बी नेगेटिव रिलेशनशिप. और नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या होगा, दैट इफ यू प्लॉट एक्स एंड वाई एंड से योर पॉइंट्स आर लाइक दीज. नाउ यू विल नोटिस, अगर आप इससे ओवरलैप करो इस वाले ग्राफ से, सो यू विल नोटिस दैट द पॉइंट्स आर मेनली लाइंग इन दिस क्वाड्रेंट एंड इन दिस क्वाड्रेंट. और इस क्वाड्रेंट में हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है ऑफ द टू डिविएशंस वो नेगेटिव है. नेगेटिव क्यों है? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर आप इस क्वाड्रेंट पे फोकस करो तो यू विल नोटिस कि यहाँ पे जो x माइनस म्यू एक्स होगा दैट विल बी नेगेटिव. मतलब x जो है वो अपने म्यू एक्स मीन से छोटे हैं, और यहाँ पे y को अगर आप देखोगे तो y इज ग्रेटर देन इट्स मीन वैल्यू. सो बोथ x एंड y आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये म्यू x है, x is going in this direction, और ये म्यू y है, y is going in this direction. y is increasing, मतलब y की वैल्यूज जो है वो म्यू y से ज्यादा हैं और x की वैल्यूज अपने एवरेज से कम है. तो बोथ आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है. सिमिलरली यहाँ पे भी आप सेम चीज देखोगे कि यहाँ पे नाउ व्हाट्स हैपनिंग, दैट x is greater than its mu x value and y is less than its mu y value. So again both of them are going in the opposite direction. इसका क्या मतलब है, that the two are negatively related with each other, meaning that higher values of x are associated with smaller values of y and vice versa. So this kind of relationship will be called as a negative relationship. And the third case is no relationship. As I said कि अगर x और y आपस में linearly related नहीं है, please note that if you get the value to be equal to 0, which is the case of no relationship, it doesn't mean that the two are independent. I've already talked about this. It just means that there is an absence of linear relationship between the two variables. And in such a case, you will get haphazard points. आपको कोई एक definite relationship नहीं मिलेगा. आपके जो x और y के points होंगे वो haphazard तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे. ना वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ना इस तरीके से, आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे. So in that case, you will call the two variables to be not related to each other in linear fashion. Then let's look at an example of how you can solve this and how you can simplify your calculation. So you will be given x and y का PDF या PMF depending on whether the x and y are discrete or continuous. So suppose आपको I'm not solving the entire question, but I'm just demonstrating steps कि किस तरीके से आप कर सकते हो. You have say 3 values of y 0, 100, 200 and 2 values of x 100 and 250. ठीक है, आपको PMF given होगा, so you will have the probabilities of each of these cells. ठीक है, I'm not writing the number. Suppose you have the probability numbers here, just writing some of them. This is the joint probability distribution because यहाँ x और y का joint आपको probability given है कि अगर x का value 100 होगा, y का value 0 होगा, तो what is the probability of that coordinate? 0 and 100 is a coordinate, is a combination. इसलिए ये joint probability बता रहा है. यहाँ से आप marginal probabilities भी निकाल सकते हो, which tells you कि अगर x की value 100 होगी तो इस चीज की क्या probability होगी, और x की value 250 होगी तो इसका क्या probability होगा. Similarly, आप y का भी marginal probability निकाल सकते हो. Now you have to calculate the covariance. अब आपको mu x और mu y की value calculate करनी पड़ेगी because you know that your formula has mu x and mu y in it. So from these values आप mu x और mu y calculate कर सकते हो. Basically, expected value of x is nothing but mu x and expected value of y is nothing but mu y.
पहला स्टेप तो आपका होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है और आपको एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो सबसे पहले तो आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालोगे और फ्रॉम द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आप म्यू एक्स और म्यू वाई का वैल्यू निकालोगे बाय टेकिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आई एम श्योर यू नो बाय नाउ। आपको ईच करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका सम करना पड़ेगा। You will get the expected values of x and y, that is nothing but the mu x and mu y. You will have to calculate these deviations. Remember जब हमने h of xy which is function of xy का expected value निकाला था, तो हमने एक टेबल बनाया था जिसमें हमने hxy की वैल्यूज को कैलकुलेट करा था। यहाँ पे y के वैल्यूज थे, इस केस में 3 वैल्यूज हैं हमारे पास, 0, 100, 250 और यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं x के। तो हमने हर सेल के लिए एच एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट करा था। एच एक्स वाई यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस म्यू एक्स इंटू वाई माइनस म्यू वाई। तो बेसिकली आपको हर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और वाई के लिए इस वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कोवेरियंस निकालने के लिए। नाउ दैट यू नो म्यू एक्स एंड म्यू वाई, आप बेसिकली अगर सपोज इसका आपको एच ऑफ एक्स वाई निकालना है, सो व्हाट विल यू डू, 100 माइनस म्यू एक्स जो भी आप कैलकुलेट करके निकालोगे इंटू 0 माइनस म्यू वाई। यहाँ पे म्यू एक्स विल बी 175, म्यू वाई विल बी 125। वो जब आप कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वाई को, तो आपको यही आंसर मिलेगा। सो व्हाट विल यू डू, यू विल कंस्ट्रक्ट द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन फॉर ईच ऑफ दीज सेल्स। ठीक है, वंस यू हैव द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ दीज सेल्स, यू विल हैव द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यूज जो आपको ऑलरेडी गिवन है। So then next is to multiply corresponding value of hxy with the corresponding value of pxy. इनको multiply करोगे and then you will take the sum of it. So one method is this कि आप पूरा इसको इस format से, okay, so यहाँ पे you have pxy. One method is that कि आप इसको इस पूरे format से solve करो। दूसरा जो एक simplification है वो ये है कि आप इस formula को इस तरीके से लिख सकते हो। So rather than writing covariance xy as expected value of x minus mu x into y minus mu y, आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसके ब्रैकेट ओपन करोगे एंड व्हेन यू टेक द एक्सपेक्टेशन फॉर ईच टर्म, जब आप इसको इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करके सॉल्व करोगे, दिस इज द रिजल्ट दैट यू विल गेट। तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके भी कोवेरियंस निकाल सकते, रादर देन कंसिडरिंग h of xy as this entire term, you can consider h of xy as just the product of x and y। ठीक है, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लो और उसमें से म्यू एक्स म्यू वाई को सब्ट्रैक्ट कर दो। म्यू एक्स म्यू वाई का एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं, एब्सोल्यूट प्रोडक्ट ऑफ म्यू एक्स म्यू वाई। या तो आप ये पहले वाला मेथड फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताया, या ये सेकंड अप्रोच फॉलो कर सकते हो। दोनों ही करेक्ट अप्रोचेस हैं, दोनों ही आपको करेक्ट आंसर, सिमिलर आंसर्स देंगी। दिस इज व्हाट इज कोवेरियंस। तो जो भी आपको कोवेरियंस का नंबर मिलेगा, दैट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, strength of the relationship between x and y. Now the problem with covariance is, and that tells you ki why do we calculate correlation. There is a problem with covariance, there is a limitation of covariance जिसकी वजह से हमें एक दूसरा measure calculate करना पड़ता है which is called as correlation. And the problem is that covariance is actually dependent on units of measurement. That is the biggest problem of the measure of covariance, that the value of covariance depends on the units of measurement, which means कि covariance का जो नंबर है, सपोज x और y दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और आपने इसका कोवेरियंस ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, यू से दैट द कोवेरियंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स लेट्स से इज इक्वल टू 120। सपोज करो आपने x और y को किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में मेजर करा हुआ है, देयर इज सम वेरिएबल ऑफ डिस्टेंस एंड यू आर मेजरिंग इट इन किलोमीटर्स। ठीक है, तो x और y दो वेरिएबल्स हैं, जो सम डिस्टेंस वेरिएबल आपने किलोमीटर्स में इसको मेजर करा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज किलोमीटर, एंड द आंसर दैट यू गेट इज 120। यू से दैट द कोवेरियंस ऑफ x एंड y इज 120। नाउ वी हैव ऑलरेडी सेड कि कोवेरियंस और कोरिलेशन आपको दो वेरिएबल्स के लिनियर रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ बताते हैं। तो 120 से आपको एक आइडिया हो रहा है दैट दिस इज द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन x एंड y। ठीक है, नाउ इमेजिन कि आपने x और y का यूनिट चेंज कर दिया और आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सो यू विल नाउ हैव ईच वैल्यू ऑफ x विल नाउ बी इक्वल टू 1000 ऑफ x एंड 1000 ऑफ y।
बिकॉज आपने इसकी यूनिट्स चेंज करी हैं, तो ऑब्वियसली अगर x का वैल्यू 1 किलोमीटर था तो वो अब 1000 मीटर्स हो गया है, because you are changing the value. So basically you are multiplying each value of x and y with 1000. तो मैं बोल सकती हूँ that I am now calculating covariance of 1000x and 1000y. The problem here is that now your covariance measure will also get multiplied with 1000. जितने भी टाइम से आपने अपने यूनिट को चेंज करा है, जो भी यूनिट्स का रिलेशनशिप है वो यहाँ पे भी आएगा, जिसकी वजह से नाउ योर कोवेरियंस नंबर विल बी सो ह्यूज दैट यू माइट कमिट एन एरर ऑफ कंक्लूडिंग कि अब एक्स और वाई का रिलेशनशिप बढ़ गया है, विच इज नॉट द रियलिटी. एक्स और वाई फंडामेंटली जिस स्ट्रेंथ से रिलेटेड है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि एक्स और वाई को आप किलोमीटर में मेजर कर रहे हो या मीटर में मेजर कर रहे हो. ठीक है, जो भी एक्स और वाई का आपस का रिलेशनशिप है एज टू वेरिएबल्स, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस यूनिट में मेजर हो रहा है. तो आइडियली जो हम मेजर यूज कर रहे हैं, जिस मेजर से हम ये कंक्लूजन बना रहे हैं कि ये दो वेरिएबल्स कितने स्ट्रांगली रिलेटेड हैं, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो कि कोवेरियंस नहीं है. कोवेरियंस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कोवेरियंस. ठीक है, that is why we calculate correlation between two variables. And correlation का जो formula होता है, you basically calculate a correlation coefficient between two variables. You denote it by rho. This is the notation, rho of xy or just rho. And the formula is covariance xy divided by the standard deviation of x and y. So what you do is you basically calculate the covariance number and then you divide the covariance number by its standard deviation, by the two standard deviation numbers of x and y. ठीक है, उससे क्या होगा कि जो भी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का यूनिट है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आप यूनिट स्केलिंग नहीं कर रहे हो कोवेरियंस में, यहाँ पे जो भी यूनिट जो भी नंबर आएगा दैट विल हैव अ पर्टिकुलर यूनिट. सो से किलोमीटर्स में आपने 120 लिया था, so you will have 120 kilometer as the covariance. ठीक है, when you divide this kilometer square, because you have multiplied both the variables, now when you divide this with standard deviation of x and y, यहाँ पे दो नंबर आएंगे जो आपको किलोमीटर के टर्म्स में मिलेंगे. ठीक है, तो यूनिट तो बेसिकली आपकी कैंसिल हो गई है, which makes this number unit free. जब भी हम दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, देन वी फोकस ऑन कोरिलेशन रादर देन कोवेरियंस, बिकॉज कोवेरियंस आपको एक मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन दे सकता है. ठीक है, सो एक्स एंड वाई आर रिलेटेड. हाउ आर दे रिलेटेड? यू विल गेट टू नो थ्रू दिस कोरिलेशन कोफिशिएंट. एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स will always lie in this range -1 and 1. Obviously अगर 0 होगा उसका मतलब है कि there is no linear relationship. 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी इस कोफिशिएंट की, तो उसका मतलब है that they are lying in these two quadrants जो हमने अभी प्लॉट करे थे, which are the positive quadrants. There is a positive relationship between x and y, और जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना ज्यादा उस रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ है. The closer it is to value 1, इट मीन्स कि एक्स और वाई का जो लिनियर रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है. अगर 0 से छोटी होगी वैल्यू, देन इट इंडिकेट्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. इस तरीके का जो हमने ग्राफ देखा था एक्स और वाई का, नेगेटिव रिलेशनशिप. और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी एब्सोल्यूट टर्म्स में, जितना ज्यादा नंबर होगा वो उस रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ बताएगा. कोरिलेशन लू एक्स और वाई का, ठीक है, then that will be equivalent to correlation of ax plus b and cy plus d. मतलब मैं अगर x को scale कर दूं, multiply it with some constant a and even add constant b, similarly y को भी मैं कुछ तरीके से scale कर दूं, c से multiply करूं, c एक constant है उससे multiply करूं और d एक constant है जो मैं उसमें add कर रही हूं, then if I take the correlation of this, that will be exactly equal to correlation of x and y, which is what we really want in a measure, जो हमें ये बताता है कि x और y कैसे रिलेटेड है. हम चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके की स्केलिंग से अफेक्ट ना हो, उससे चेंज ना हो. So we can say that correlation qualifies that condition and hence it is advisable and better to
always calculate correlation coefficient to understand the relationship between two variables. Specifically, understand the linear relationship.